آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں لاہور کی کسی گلی میں ٹہل رہا ہوں، ایسا بالکل نہیں. میں اس وقت گلگت میں موجود ہوں. اسے تاریخی حیثیت حاصل ہے. اس بازار کو اب اولڈ برج بازار کہا جاتا ہے، اور اس بازار کی خاص بات یہاں کی روایتی ٹوپیاں ہیں، اور ان ٹوپیوں کی مانگ پورے گلگت بلتستان میں ہے. تو آئے اس بازار کی سیر کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ کاروباریوں سے گفتگو بھی کرتے ہیں. گلگتی ٹوپی اب بین الاقوامی شہرت حاصل کر چکی ہے، اور ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے وہ گلگتی ٹوپی اور ساتھ ساتھ جو ٹوپی کے اوپر تاج لگتا ہے وہ پہنے. اور کافی جاذب نظر یہ ٹوپی ہوتی ہے اور ہر کسی کو بھا جاتی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک یہاں کے قدیم کاروباری موجود ہیں، حاجی صاحب، اور یہ کافی عرصے سے یہاں پر ٹوپیاں بنا رہے ہیں. ان سے اس بازار کے حوالے سے یادیں بھی شیئر کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ٹوپیوں کی اقسام کے حوالے سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. حاجی صاحب، بہت شکریہ آپ نے اسکردو ٹی وی کو ٹائم دیا. سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا. محمد رضا میرا نام ہے. رضا بھائی، کب سے اس بازار میں ہیں؟ کوئی یادیں ذرا شیئر کیجیے گا. میں 1997 سے. اچھا، 1997 سے یہاں پر ہیں. جی جی. 1997 سے اب تک اس بازار میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں؟ اس 1997 سے ابھی تک اس میں یہ ہے کہ یہ بازار یہ اتنا امن ادھر ہے. پرامن ہے. یہ پرامن ہے. اس لیے اسی کو اخونی میں میلہ کہتے ہیں. اخون آپ کو خود پتہ ہے کہ لوگ عبادت کرنے والے لوگ، عبادت زیادہ عبادت کرنے والے لوگ، کیونکہ ادھر مسجد بھی ہے، جامع مسجد بھی ہے، بہت بڑی مسجد ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ ہیں. تو ادھر یہ بازار آگے گزر سے نگر سے سب لوگ ادھر آتے تھے. یہاں سے شاپنگ ادھر سے کرتے تھے. تو ابھی تو یہ ہے کہ ابھی لائیو مارکیٹ بن گئی، آگے دوسری بازار بن گئی، جٹال میں بازار بن گئی، آگے دائیں بائیں دوسرے جگہوں میں بن گئی. تو اسی کا اب بھی اس کا ایک وہ ہے، پہچان ہے. اب بھی اس کی پہچان ہے. ابھی بھی ادھر امن ہے. 88 ہوا ادھر امن ہے، 92 ہوا ادھر امن ہے، 95 ہوا ادھر امن ہے. باقی جگہوں میں نہیں. باقی جگہوں میں اور کوئی تھا. ادھر کے لوگ اچھے ہیں، اچھے شہری ہیں، اور اچھے لوگ ہیں ادھر. صحیح. اچھا حاجی صاحب، مجھے بتائیے گا، ٹوپیوں کا کام آپ کب سے کر رہے ہیں؟ میں 97 سے ہی کرتا ہوں. صحیح. کہاں سے سیکھا تھا یہ؟ چونکہ یہ بڑا مشکل یہ کام ہے. میں ادھر آنے کے بعد سیکھا ہے. ٹھیک. بس ادھر. ٹھیک. اب چونکہ جس کام میں آپ کو مہارت ہے اس کام کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ٹوپیاں آپ بناتے ہیں اور پورے گلگت بلتستان میں آپ کی بنائی ہوئی ٹوپیاں پہنچ جاتی ہیں. ٹوپیوں کی کتنی اقسام ہوتی ہیں پہلے یہ بتائیے گا. یہ ٹوپیوں کی اقسام عموماً ایک ہی ہے، گلگتی ہے یہ ٹوپی. وہ سفید والی ٹوپی. ہاں. اب اس کا رنگ الگ ہے. رنگ کے حساب سے ہے. براؤن ہے، بلیک ہے، وائٹ ہے، ہاں، نیلا ہے، ہر قسم کا ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل. باقی ابھی اب وہ نگر سے جو آتے ہیں الگ الگ اچھے چیز بھی آتی ہیں. نارمل بھی ہے جس میں 1200 سے لے کر 8000 تک بکتے ہیں. اچھا. ٹوپیاں زیادہ سے زیادہ 8000، کم سے کم 1200. ٹھیک. ابھی جو آپ بنا رہے ہیں اس کو شناز زبان میں میرے خیال میں پروٹ کہا جاتا ہے. یہ عام لوگ جو یہاں پنجاب سے آتے ہیں یا سندھ سے آتے ہیں وہ یہ ٹوپی خرید کر تو جاتے ہیں، لیکن انہیں یہ بنانا نہیں آتا. یہ بنانے کا کوئی خاص طریقہ ہے؟ نہیں، اس کا بس یہ ڈوری ہے. ڈوری لگانے کے بعد اسی کو اندر جانے کے بعد اس قسم کا سرانہ بنا کے اس کے اندر ڈالنے کے بعد سر کے حساب سے بس بناتے ہیں. یہ لوگ سیکھتے ہیں. یہ سائز پہلے لینا ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا، کپڑے کے بارے میں بتائیے. کپڑا کہاں بناتے ہیں آپ؟ خود بناتے ہیں کپڑا بھی یا پھر کہیں سے خریدتے ہیں آپ؟ ہاں، یہ کپڑا گاؤں میں بنتا ہے. بیڑ کے اون سے دھاگا بناتے ہیں. دونوں دھاگے بناتے ہیں. جو بیچ میں لگتی ہے اوپر لگتی ہے بناتے ہیں. اس کے بعد وہ جو بنانے والا مشین ہے اس کے بعد وہ دیسی مشین ہے جس کو ہم ہیس کہتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں. ہاتھ سے. ہاں، وہ بناتے ہیں. اس میں الگ الگ کوالٹیاں ہیں. ایک اچھی کوالٹی کی بناتے ہیں، ایک نارمل کوالٹی کی بناتے ہیں. بناتے تو ایک ہی بناتے ہیں. ٹھیک. بس خواتین کی ٹوپیوں کے بارے میں بتائیے گا. مردوں کی ٹوپیاں تو یہاں پر بہت زیادہ رکھی ہوئی. خواتین کا یہ ٹوپیاں
हाथ से बनाती हैं खवातीन आजकल। आजकल तो पहनती भी नहीं है। पहनती भी नहीं है, अगर वो एक दो आती हैं तो वो हाथ से बनाती हैं। ये दुसोता के कहते हैं, हाँ। ठीक है ना, जो नीचे से आता है उसी में वो धागा से फूल बनाते हैं, अलग अलग जी, जी, किस्म जी। के फूल बनाते हैं, वही हिसाब से बनाते हैं। वो इतना नहीं बिकता है अभी, सही सही। ज़्यादा नहीं बिकता है। बहुत शुक्रिया हाजी साहब। मैं अंदर टोपियाँ देख लूँ अगर आपकी इजाज़त हाँ, हो तो। देखें ना। हाजी साहब मुख्तलिफ टोपियाँ यहाँ पर बनाते हैं और 1992 से ये काम कर रहे हैं। जिस तरह हाजी साहब ने कहा कि पहले तो एक ही कलर की टोपी होती थी, ऊनी टोपी होती है, बेसिकली ये खालिश ऊन से तैयार की जाती है। अब इसमें कलर की वैराइटीज़ जो हैं वो दिन ब दिन मुख्तलिफ होती जा रही हैं। लोग अपने डिमांड के हिसाब से या अपनी चॉइस के हिसाब से कलरों का इंतखाब करते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली आजकल जो टोपी चल रही है शांटी के साथ, वो ये टोपी है और इसे चतराली टोपी भी कहा जाता है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की टोपी में और चतराली टोपी में थोड़ा बहुत जो मेकिंग का, गिलगिती ये वाली टोपी है, हाँ, ये थोड़ी सी बड़ी होती है, पूरे सर में भी आ जाती है और इसके पहनने के तरीके भी अलग है। हमने किसी ज़माने में बुज़ुर्गों से सुना था, जब आप टोपी को इस तरह रखते हैं तो किसका कोई और मतलब होता है, इस तरह रखते हैं तो कोई और मतलब होता है, ऐसे रखते हैं तो कोई और मतलब होता है। अब चूँकि टोपी भी मतरूक तो नहीं हुई, हमारे बुज़ुर्ग पहनते हैं, जवानों ने अब इसे पहनना छोड़ दिया है। जवानों को भी इस कल्चर को ज़िंदा रखना चाहिए, पहनना चाहिए। हाजी साहब बहुत शुक्रिया। और जो ख़वातीन की टोपी की हम बात कर रहे थे, ये ख़वातीन की मखसूस टोपियाँ हैं जिन्हें आप ख़वातीन ने पहनना कम कर दिया है। बहुत कम ख़वातीन हैं जो ये ज़ेब तन करती हैं, लेकिन काफ़ी मेहनत इसमें लगती है और बहुत मेहनत से पूरे एक दिन में एक टोपी मुश्किल से तैयार हो सकती है। बनाते हैं ना, देखो ना, जी जी। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ ना। ये टोपियाँ हैं, ये जो हाँ, ये हाथ से काफ़ी हद तक सिंधी टच है हाथ इसमें। से बनाते हैं, वाह। ये हाथ से बनी होती है अच्छा, ये इसको टोपियाँ। परोते हैं, नहीं, कोई मशीन है इसकी? नहीं, हाथ से बनाते अच्छा, हैं, मुकम्मल हाथ से। मुकम्मल हाथ से बनाते हैं, ये मुकम्मल हाथ से बनाते हैं। इसके अंदर इस्त्र है, अच्छा, चादर वो भी डालते है। हैं, हाँ, जो पूरा इस्त्र सर पे ढापा लगाते हैं ना, जाता है। इसके अंदर गत्ता लगाते हैं, गत्ता लगाने हाँ, के हाँ। बाद ये बन जाता है, ज़बरदस्त, ये सेटिंग बन जाती ज़बरदस्त। अच्छा, इसकी कीमत कितनी है अगर हमारा दोस्त आपसे है। लेना ये चाहें तो? 2500, 2000, 1800 जी, मुख्तलिफ है। मुनासिब है, बिल्कुल मुनासिब है। पूरा एक दिन इसमें सर्फ हो जाता हाँ, है। भैया, सही सही। तो किसी ज़माने में टोपी के साथ साथ चादर भी बड़ी मशहूर होती थी, चादर भी यहाँ पर लगी हुई है। एक खान साहब भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। खान साहब, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद नज़ीम। नजीम भाई यहाँ पर काम करते हैं? जी जी, कौन सा काम करते हैं? मिस्त्री का काम कर रहा हूँ। मिस्त्री का काम करते हैं। इस बाज़ार के मतलब क्या कहेंगे? ये बाज़ार काफ़ी पुराना बाज़ार है गिलगित का। इस बाज़ार में और बाकी बाज़ारों में क्या फ़र्क है? बहुत कुछ फ़र्क है सर। मसलन? इतना हम इधर आए नहीं, क्या बताएंगे आपको। अच्छा, आप ठीक नए है? नए? नहीं चले जी। टोपी पसंद आई आपको? नहीं, तो भी सर में पहना हुआ है। चले जी, ठीक। एक यहाँ पर मुझे थोड़ी देर पहले एक बच्चा दिखाई दिया था, लेकिन इस वक्त वो अपनी शॉप पे मौजूद नहीं है। यहाँ पर एक और कारोबारी दोस्त है, नूरुल अमीन, शॉप पे हम मौजूद है। और भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अच्छा, ये किस चीज़ की दुकान है बुनियादी तौर पर? ये नस्वार का दुकान है, तम्बाकू नस्वार नस्वार की और दुकान है। बीच वगैरह कोयला वगैरह भी सीज़न में होता है। ठीक। इस बाज़ार में कब से हैं? ये बहुत पहले से, तकरीबन बहुत पहले से। सही। तो बाकी तमाम बाज़ार तो जो गिलगित में हैं वो तब्दील हो चुके हैं, अब कंक्रीट के बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। ये बाज़ार तब्दील नहीं हुआ। इस बाज़ार की ख़ास बात क्या है, ज़रा बताना पसंद करेंगे? ये पुराना पुल रोड, बस पुराना पुल रोड, ये पुल की वजह से मशहूर है, इसी वजह से बस ये तब्दील नहीं हुआ है। इसी पुल की वजह से बड़े मतलब बाहर से वो आते हैं, सयाह इधर आके इधर जाते हैं, इधर से इसी पुल की वजह से इधर आते हैं। ठीक। पुराना पुल रोड की मशहूर है। ठीक। जी सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक बुज़ुर्ग यहाँ पर हमें मिले हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं? खैरियत हैं? ठीक ठाक है। ज़रा अपना मुझे नाम बताइएगा पहले। कहाँ से आपका ताल्लुक़? गिलगित से आपका ताल्लुक़ है? अच्छा बुज़ुर्ग, आप क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग हैं और आपने देखा है, ज़माने के रचे व फराज देखे हैं, ज़माने को तब्दील होते हुए देखा है, इस बाज़ार के बारे में बताइएगा। पहली बार ये बाज़ार कब बना था और इस बाज़ार में क्या तब्दीली आई? इस बाज़ार में चलना की तब्दीली नहीं आई है, महंगाई ने खाया है, क्या तब्दीली आई है। नहीं, महंगाई तो पूरे मुल्क का मसला है, लेकिन ये बाज़ार की कोई तारीख़ी हैसियत भी है? ये तो यही है बस। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा। खुश रहे। और महंगाई ने हम सबको परेशान किया है, आपको ज़्यादा परेशान है? बिल्कुल सही। हाजी साहब यहाँ के रिहायशी हैं और बाज़ार की तारीख़ी हैसियत के हवाले से इतना नहीं जानते। यहाँ पर खालिश शहद भी बिक रहा है। हाजी साहब से शुक्रिया, शुक्रिया, मेहरबानी 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 मेहरबानी। दोबारा चक्कर लगाते हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं? खैरियत हैं?
नाम क्या है हाजी साहब, कहाँ से? हम करगा से है। कारगा से हैं। हाँ करगा। अच्छा हाजी साहब, इस बाज़ार के बारे में ज़रा बताइएगा, बाज़ार की तारीखी हैसियत क्या है, कब ये बाज़ार बना था, क्या तब्दीली इसमें आई है? इसका मुझे कितना में पता नहीं है, मौकम बंदा से कुछ। अच्छा, इधर आप कारोबार के सिलसिले में आए थे या कोई ख़रीदारी के सिलसिले में आए थे? कारोबार तो ये करते हैं ना, एक बस काटते हैं, किसी को मैं छोड़ता नहीं है। हाँ, महंगाई का हद बढ़ गई। ठीक। ये सोफे है ना, ये तो काटते हैं सब बंदों को। नहीं, तरबूज काटता है वो, बंदों को हाँ नहीं तरबूज में काटे, बंदों को भी काटते हैं। काटता। चलो जी खान साहब, आप पे इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि आप बंदे भी काटते हैं, तरबूज भी काटते हैं। सबसे पहले तो आपने जो पंखा बनाया बड़ा अच्छा बनाया, जी सर। कैसे कैसे चलता है? ये तरबूज से चलता है? नहीं, ये तो बिजली पे चलता है ना। सही। अच्छा खान साहब, कब से इस बाज़ार में काम कर रहे हैं? हमारा तकरीबन 5-6 साल हो गए सर, इधर के ही, हम नीचे का नहीं, अच्छा गिलगित का ही। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मुझे बताइएगा इस बाज़ार में क्या ख़ास बात है, क्योंकि इसका गिलगित में अब बड़े बाज़ार बन चुके हैं, बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, शॉपिंग मॉल बन चुकी हैं, लेकिन लोग यहाँ आना पसंद करते हैं, यहाँ से चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं, इसकी वजह क्या है? ये असल में पुराना पुल है ना सर, पुराना जगह है जो इधर पुल देखने के लिए भी आते हैं, और ये पुराना बाज़ार है, गिलगित का पहला बाज़ार है। ठीक। तो यहाँ हर चीज़ रियायत पे भी मिलता है, अच्छा भी मिलता है। ठीक। वो हाजी साहब शिकायत कर रहे हैं चीज़ें महंगी। नहीं, महंगा नहीं, इधर सब गिलगित में पुल रोड सस्ता है सर। अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। नहीं, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक होटल भी है और यहाँ की जलेबी बड़ी मशहूर है। अगर आप ओल्ड बाज़ार आएँ और यहाँ से जलेबी आप ट्राई ना करें तो ज़्यादती हो जाती है। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा, आपकी जलेबी जो है पहले भी मैं यहाँ पर आपके पास आया था और आपके पकौड़े भी हमने चखे थे, जलेबी हमने चखी थी। क्या ख़ास बात है इन जलेबी में जो दूर दूर से लोगों को खींच के यहाँ पे लाती है? बस बात ये है, जो भी कारोबार करे इंसान पहले अच्छे अंदाज से करे, इखलाकी तौर पे करे और सफाई के साथ करे, और बावजू बानमाज पड़े तो उसमें कुदरती वो उसमें जायका पैदा हो जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये जनाब गिलगित का ओल्ड बाज़ार है और यहाँ पर आप मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीद सकते हैं, सब्ज़ियाँ ख़रीद सकते हैं, टोपियाँ ख़रीद सकते हैं और मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियाँ भी आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। और लाहौर वाली फीलिंग यहाँ पर आपको आती है, जिस तरह लाहौर में आप ओल्ड गलियों में घूमते हैं और लगता है कि आप ज़माने कदीम में है, तो बिल्कुल यहाँ भी वही ओल्ड फीलिंग यहाँ पर आपको आती है। इस वक्त सब्ज़ियों के जो ठेले हैं वो लगे हुए हैं, मुजा बाजार रेडी लगे हुए हैं। कि तारीख़ के हवाले से हमने जानने की कोशिश की तो बहुत सारे अहबाब को इसका इल्म नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक बारिश बुज़ुर्ग से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि वो गुज़िश्ता 50 साल से इसी बाज़ार में हैं, तो 50 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। हाजी साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बैठने के लिए जगह दी। सबसे पहली बात तो ये है बहुत गर्मजोशी से आपने हमें बिठाया यहाँ पर। तो बताइएगा, कुछ यादें शेयर कीजिएगा। 50 साल एक बड़ा अरसा है। खैर से आप उस वक्त यंग होंगे, जवान होंगे, अब माशाल्लाह से अभी भी जवान तो हैं, बस दाढ़ी सफ़ेद हो गई। तो इस बाज़ार में क्या तब्दीलियाँ आई? इस बाज़ार में वैसे इस रोड पे ज़्यादा तब्दीली नहीं आई, लेकिन आगे उस वक़्त जो सलमा बाज़ार है ना, उससे आगे वो नसीम सलमा होता था, जी जी, उससे आगे तकरीबन आबादी नहीं थी, ये खेत जैसे थे। हम एयरपोर्ट जाते थे साइकिलों पर, मोटरसाइकिलों पर, तो आगे खाली वो थे, मैदान होते थे। तो अभी वो देखे वहाँ पर 5-5, 10-10 मंजिला बिल्डिंगें बन गई हैं। तो ये रोड सिर्फ ये है कि दुकानें उस वक्त कच्ची होती थी, अभी ज़रा बना के आरसीसी कर दिया, चूँकि इस रोड की वसत की गुंजाइश नहीं है। आगे लकड़ वाला पुल है, तो उसके नमुल बदल अभी दूसरा पुल आरसीसी बना है, तो उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है। लेकिन ये चूँकि पुराना तारीख़ी बाज़ार है, तो उस लिहाज से ये और कश्मीरी बाज़ार, ये उस वक़्त के पुराने सबसे पहली मतलब आबादी होती थी बाज़ार के लिहाज से। जो वैली का दौर था, उस वक़्त यहाँ कारोबारी होते थे। बाबूसर टाप से जीपों में आता था माल, यहाँ पेंड होता था, फिर वो 3 महीने में, और फिर वो आगे लोग खरीदा करते थे। जब आपने 50 साल पहले कारोबार का आगाज़ किया था, तो इस बाज़ार में कितने कारोबारी थे आप समेत? उस वक़्त तो मेन कारोबारी यहाँ पर थे जी। अच्छा, सारे हाँ, के सारे। ये जी मरकज़ी कारोबारी जो कुछ दोस्तों के नाम याद हैं आपके पुराने? ये अभी यहाँ मियाँ गुल ठेकेदार होता करता। अच्छा, इधर करीमजान फोटोग्राफर की दुकान होती थी मरहूम पुराने कैमरे वाला। जी जी जी, पुराने कैमरे वाला, ये सामने मेरे सामने उसकी दुकान होती थी। और बाकी ये नीचे जो है ये छप्पर होते थे, उसमें ये टोपियों शोपियों के, इससे ऊपर जो था वो बाज़ार अच्छा था तकरीबन।
और नीचे जो है वो छोटी छोटी दुकानें होती थी। आपने गिलगिती टोपी ट्राई नहीं की? 50 साल आप गिलगित में अरे रहे, ये है, मेरी ये जल्द जो है बहुत कमज़ोर है, अगर मैं वो यूज़ करता हूँ तो एकदम वो वो निशान पड़ जाता है। निशान पड़ता है, इस वास्ते मजबूरी है। आपने वरना कहा मैं पसंद करता हूँ। अच्छा, ठीक, ठीक, ठीक। तो अच्छा, आपने कहा कि बाहर लहलहाते खेत थे, वहाँ आपने खेला, साइकिलिंग की। जी जी। तो कभी दिल नहीं किया कि यार मैं भी किसी बड़ी मार्केट में चला जाऊँ, किसी बड़े प्लाज़े में चला जाऊँ? अर्ज़ ये है जी, अल्लाह का शुक्र है, हमें अल्लाह पाक ने यहाँ भी सब कुछ दिया हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बच्चे हैं अभी नलाई में, उनकी दुकान है, कारोबार है। तो मेरी ये एक बैठक है, मस्जिद करीब है, हाँ। तो हमारे यार दोस्त आते हैं गपशप के लिए, बैठे होते हैं साथ। जो मेरी कदर में है, अच्छे से अच्छा अल्लाह पाक देता है उसको, बहुत सही। इस काबिल नहीं है। बुनियादी तौर पर ताल्लुक आपका कहाँ से है? मैं मानसरा बफा से हूँ जी। मानसरे बफा से आप हैं, तो 50 साल का सफ़र बहुत लंबा सफ़र जी, हम है। ट्रकों इस में अरसे आते थे में उस वक्त। लोगों को जानने का, पहचानने का यकीनन मौका मिलता है। जी जी। 50 साल आपने गुजारे, कैसे लगे गिलगित के लोग आपको? मुझे बहुत अच्छे लगे जी, क्योंकि ये दीनी लिहाज से मेरी इनसे निस्बत रही है। सारे मेरे हज पे हम सफ़र रहे हैं, तबलीगी जमात वाले। तो जो लोग मेरे साथ उठते बैठते हैं, एक से एक बढ़ के है। सही, मैं उसकी जितनी तारीफ़ करूँ कम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यकीनन जी गिलगित बल्तिस्तान और ख़ास तौर पर गिलगित और बाकी जितने भी अज़ला हैं, सब अमन का गहवारा है। और यहाँ पर मजहबी रवादारी, सकाफ़ती रवादारी आपको देखने को मिलती है। हाजी साहब गुज़िश्ता 50 सालों से गिलगित बल्तिस्तान में मुक़ीम है, और इनका ये कहना है कि यहाँ के लोग प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले हैं, और ये यहाँ के लोग लोगों को मेहमान समझते हैं, उन्हें कस्टमर नहीं समझते हैं। तो यहीं पर हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं जी। इस बाज़ार के हवाले से कुछ हमने जानने की कोशिश की, और अगर आप भी इस बाज़ार का विज़िट करना चाहें तो लाजमी करें। इसकी तारीख़ी हैसियत है, और यहाँ आकर आपको एक ओल्ड टच भी मिलता है, और साथ साथ जदीदियत का एहसास भी होता है, क्योंकि ओल्ड एंड न्यू का जो इम्तज़ाज है वो बहुत कम देखने को मिलता है। गिलगित का वाहिद बाज़ार है जहाँ से आप इन दोनों चीज़ों को देख सकते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम को और मावनीन ज़िशान मेहदी और कासिम भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।